ویلکم بیک۔ علاقائی خبریں شامل کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے تھانہ سٹی رنالہ خورد کی حدود میں پولیس مقابلے کے دوران ایک خطرناک ڈاکو ہلاک جبکہ اس کے 2 ساتھی فرار ہو چکے ہیں۔ پولیس کے مطابق فرار ہونے والے ڈاکوؤں کی گرفتاری کے لیے سرچ آپریشن جاری ہے۔ مزید مشتاق احمد بھٹی کی رپورٹ میں دیکھیے۔ جی بالکل، تھانہ سٹی رنالہ خورد کی حدود ماڈل ٹاؤن پل کے قریب 3 موٹر سائیکل سوار ڈاکو ماڈل ٹاؤن پل کے قریب واردات کر رہے تھے۔ گشت پر مامور ایس ایچ او تھانہ سٹی عاطف نواز اپنی ٹیم کے ہمراہ موقع پر پہنچ گئے۔ پولیس پارٹی کو دیکھتے ہی ڈاکوؤں نے اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ پولیس نے حفاظتی خود اختیاری کے تحت جوابی فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں ایک ڈاکو اپنے ہی ساتھیوں کی اندھا دھند فائرنگ سے ہلاک ہو گیا جبکہ 2 ڈاکو فرار ہو گئے۔ تھانہ سٹی رنالہ خورد پولیس سمیت سرکل پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا اور فرار ڈاکوؤں کی تلاش کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی گئی۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ بہاولپور میں تھانہ مسافر خانہ کی حدود میں مبینہ قبضہ مافیا کے خلاف متاثرین نے ریجنل پریس کلب بہاولپور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے الزام عائد کیا ہے کہ بااثر افراد نے پولیس اہلکاروں کے ہمراہ ان کی 20 کنال زرعی زمین پر قبضے کی کوشش کی۔ متاثرین کے مطابق مزاحمت پر خواتین کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا جبکہ پولیس نے انصاف دینے کے بجائے ان کے افراد پر مقدمات درج کر لیے ہیں۔ متاثرین نے وزیر اعلیٰ پنجاب، آئی ٹی پنجاب اور ڈی پی او بہاولپور سے انصاف کی فوری کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں کامران علی کی اس رپورٹ میں۔ بہاولپور تھانہ مسافر خانہ کی حدود میں مبینہ قبضہ مافیا کے خلاف متاثرین آمنہ بی بی زوجہ محمد اکبر، نجمہ بی بی زوجہ حاجی اللہ وسایہ، سکنہ موزہ کڑپال بستی میتھلا نے ریجنل پریس کلب بہاولپور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے الزام عائد کیا کہ اللہ بچایا ولد محمد افضل قوم لودھرا، محمد عامر ولد اللہ بچایا، محمد سہیل ولد اللہ بچایا، محمد اکرم ولد غلام حیدر قوم نائچ، محمد اصغر ولد غلام حیدر قوم نائچ، محمد اشرف ولد غلام حیدر اور محمد اختر ولد غلام حیدر نے مبینہ طور پر سب انسپکٹر عبد المالک اور 4 کانسٹیبلوں کے ہمراہ ان کی 20 کنال زرعی زمین پر قبضے کی کوشش کی۔ متاثرین کے مطابق مزاحمت پر خواتین کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور کپڑے پھاڑے گئے جبکہ دھمکیاں بھی دی گئیں۔ متاثرین کا کہنا تھا کہ زمین کا تنازع عدالت میں زیر سماعت ہے، اس کے باوجود انہیں ہراساں کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے تھانہ مسافر خانہ پولیس پر جانبداری کا الزام عائد کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب، آئی جی پنجاب اور ڈی پی او بہاولپور سے فوری نوٹس لے کر انصاف فراہم کرنے کی اپیل کی ہے۔ کامران علی، NTN نیوز، بہاولپور۔ ڈہرکی میں گرمی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی شہر اور گرد و نواح میں گرمی سے بچنے کے لیے مختلف ٹھنڈے ٹھار اور قدرتی توانائی سے بھرپور مشروبات کے سٹالز سج چکے ہیں۔ اسی پر مزید بات کرتے ہیں نمائندہ NTN علی رضا سومرو سے۔ علی رضا، بتائیے گا شہریوں کا کیا کہنا ہے؟ ڈہرکی میں گرمی کی شدت میں بے پناہ اضافہ ہو گیا ہے اور سورج بھی اپنی آنکھ دکھا رہا ہے۔ اس وقت میں موجود ہوں ڈہرکی میں، یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈہرکی شہر اور گرد و نواح میں گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے، جگہ جگہ پر ٹھنڈے اور میٹھے مشروبات کے اسٹال سج چکے ہیں۔ اس وقت میں موجود ہوں ڈہرکی میں ایک املی اور آلو بخار کے اسٹال پر۔ ہمارے ساتھ یہاں پر ایک شہری موجود ہے، آئیے ان سے بات کرتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے۔ جی ہاں دوستو، دیکھیں ڈہرکی شہر میں اس وقت گرمی کی شدت کا بہت اضافہ ہو چکا ہے، جسے ہم املی آلو بخارے کا جوس پی کر اپنی توانائی کو بحال کرتے ہیں، جو جگر اور مثانے کے لیے بہت مفید ہے، جس سے ہم بہت انجوائے کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے یہاں پر شہری کی بات سنی، ان کا یہی کہنا تھا کہ املی اور آلو بخارے کا جو شربت ہے وہ جسم کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے اور ہم اس سے خوب لطف اندوز بھی ہو رہے ہیں۔ جی پاک پتن میں وزیر اعلیٰ پنجاب کا صحت کے فروغ کے لیے انقلابی قدم۔ پاک پتن میں 3 روز کے لیے 6 میڈیکل کیمپ لگائے گئے ہیں، جہاں پر مختلف امراض کا علاج کیا ہے، ایک ہی چھت تلے کیا جا رہا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں سیف خان کی اس رپورٹ میں۔ پاک پتن میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے 6 مختلف مقامات پر 3 روز کے لیے فری میڈیکل کیمپ لگائے گئے ہیں، جہاں پر دور دراز سے آنے والے مریضوں کو ایک ہی چھت تلے علاج معالجہ کی تمام تر سہولیات مہیا کی جا رہی ہیں۔ کیمپ میں تمام امراض کے ڈاکٹر، پیرامیڈیکل سٹاف اور MS ڈاکٹر احسن ملک ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ ڈسٹرکٹ پاک پتن میں اس وقت 6 ہیلتھ اسکریننگ کیمپس فنکشنل ہیں، ایک DHQ ہاسپٹل پاک پتن میں، تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل آری والا، MNH 93D، RAC قبولہ، مریم نواز ہیلتھ کلینک 149 EB اور مریم نواز ہیلتھ کلینک ہیلا بٹوا۔
इस कैंप का बेसिक मकसद ये है कि लोगों को एक ही जगह पे सारी स्क्रीनिंग की फैसिलिटी दी जा सके। इन 3 दिनों में तकरीबन 3000 से 4000 मरीज़ों को DHQ हॉस्पिटल पाकपतन में हमने स्क्रीन किया है, जिसके अंदर हमने हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और HIV की स्क्रीनिंग किया है, और जो पेशेंट्स हमारे HB के पॉजिटिव थे उनको हमने वैक्सीनेट भी किया है। उसके अलावा हमने हामला ख़वातीन जो है उनका एंटीनेटल चेकअप्स किए हैं, जिनके अंदर खून की कमी थी उनको हमने जो है वो यहाँ से दवाइयाँ मुहैया की हैं। उसके अलावा हमारे पास डायबिटीज़ के पेशेंट्स जो न्यूली रजिस्टर्ड पेशेंट हैं उनको हमने रजिस्टर भी किया है। फ्री मेडिकल कैंप में मरीजों को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा डिप्टी कमिश्नर पाकपतन आसफ रजा ने मुख्तलिफ विजिट करते हुए किया और कैंप में मौजूद स्टाफ को तारीफी सर्टिफिकेट से भी नवाजा। कैमरा टीम के हमरा सैफ खान रूडी, NTN न्यूज़ पाकपतन। सहाफ़त का मुआशरे में अहम किरदार के उन्वान से समुंदरी के निजी होटल में सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें डायरेक्टर जनरल पैमरा पंजाब आयशा मंजूर वट्टू ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। सेमिनार का अहतमाम समुंदरी के मारूफ समाजी और हर दिल अजीज़ शख्सियत चौधरी वकास याकूब ने किया। समुंदरी से देखते हैं उस्मान कादरी की ये रिपोर्ट। समुंदरी की मारूफ समाजी और हरदिल अजीज़ शख्सियत चौधरी वकास याकूब की जानिब से सहाफ़त का मुआशरे में अहम किरदार के मौजू पर समुंदरी के निजी होटल में सेमिनार का अहतमाम किया गया, जिसमें डायरेक्टर जनरल पैमरा पंजाब आयशा मंजूर वट्टू ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। सेमिनार में सहाफ़त की अहमियत, ज़िम्मेदाराना रिपोर्टिंग और मीडिया का मुआशरे में मस्बत किरदार पर तफसीली गुफ्तगू की गई। तकरीब से खिताब करते हुए DG पैमरा पंजाब आयशा मंजूर वट्टू ने कहा कि सहाफ़त किसी भी महज़ब मुआशरे की बुनियाद तस्वर की जाती है। सहाफ़ी दयानतदारी, जानबदारी और मस्बत अंदाज में अपना पेशा वराना जिम्मेदारियाँ अदा करें तो मुआशरे को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। तकरीब से खिताब करते हुए चौधरी वकास याकूब का कहना था कि सहाफ़ी मुआशरा की आँख और कान होते हैं, जो मुआशरे में शऊर बेदार करने, हक़ाइक़ को सामने लाकर अवाम की रहनुमाई की जिम्मेदारी अदा करते हैं और अवामी मसाइल को हुकाम बाला तक पहुँचाने में कलीदी किरदार अदा करते हैं। सेमिनार में असिस्टेंट कमिश्नर समुंदरी कमर महमूद मांझ, साबिक़ डिस्ट्रिक्ट मेंबर बैतुल माल मैडम शमाइला सत्तार, MS सिविल अस्पताल डॉक्टर आसफ सिद्दीक, सिविल राइट्स एसोसिएशन के सदर मलक मोहम्मद शफ़ी, सरदार अब्दुल मालिक, अल फजीलत वेलफेयर फाउंडेशन के सरपरस्त चौधरी अतीक रंधावा, अंजुमन ताजरान के सदर मियाँ शबीर अहमद महालमी, सदर बार एसोसिएशन तांदलियावाला मलक मुस्तफ़ा वट्टू समेत सहाफ़ियों, सिविल सोसाइटी और मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने शिरकत की। उस्मान कादरी, NTN न्यूज़ समुंदरी। आगे बढ़ते हैं। तहसील कबीरवाला के नवाही इलाके हवेली कोरंगा रोड पर वाक़ सेम नाला पुल उर्से दराज से खस्ता हाली का शिकार है। पुल की तामीर का काम शुरू तो किया गया, मगर शहरियों के मुताबिक ठेकेदार अधूरा काम छोड़कर गायब हो गया। नामुकम्मल पुल की वजह से तलबा, किसानों, मरीजों और मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि शहरी खतरनाक सूरत हाल में सफ़र करने पर मजबूर हैं। अहले इलाका ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने और पुल की तामीर मुकम्मल करवाने का मुतालबा किया है। हमारे साथ मौजूद हैं वसीम सज्जाद सियाल, मज़ीद उनसे तफसीलात जानते हैं। जी वसीम। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं तहसील कबीरवाला का नवा इलाका हवेली कुरंगा में, और इस वक्त मौजूद हैं हम सेम नाला पुल पर, जो अरसा दराज से खस्ता हाली की वजह से तकरीबन मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। हमारे साथ एक शहरी भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं वो क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि 2025 में जो सैलाब आया दरिया रावी से, तो वो सैलाब यहीं से गुजरा है, सैलाब का यही रास्ता था। उस सैलाब की वजह से ये रास्ता बिल्कुल टूट फूट का शिकार है, और ये पुल उससे पहले ठेकेदार ने नया बनाने के लिए इसकी जो मुरम्मतें शुरू की थी वो भी बीच में छोड़ के भाग गया है। तो हमारा आला काम से गुजारिश है कि इस पुल को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। ये दिरखाना मोड़ से हवेली कुरंगा की तरफ जा रही है, जिसमें मरियम निवाज हेल्थ सेंटर भी आता है, और हर रोज की बुनियाद पर मरीज यहाँ से गुजरते हैं, और रास्ता न होने की वजह से मरीजों को दुश्वारी होती है। जी बिल्कुल, जैसे कि शहरियों में बोला गया, आला हुकाम से हमारा मुतालबा है कि इस रोड की, इस पुल की जल्द अज जल्द तमीर की जाए। जी। जलालपुर पीरवाला में DSP ट्रैफिक अब्दुल हमीद ने निजी तालीमी इदारे दी एजुकेटर्स जलाल कैंपस का दौरा किया और तलबा व असातिज़ा को रिक्शा और वैन में सफ़र के दौरान हिफाजती तदाबीर से आगाह किया। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा NTN न्यूज़ मलिक मोहम्मद नवाज की इस रिपोर्ट में। जलालपुर पीरवाला DSP ट्रैफिक अब्दुल हमीद ने निजी तलीमी इदारे दी एजुकेटर जलाल कैंप्स का दौरा किया और तलबा उस्ताज़ा को रिक्शा और वैन में सफ़र के दौरान हिफाजती तदबीर से आगाह किया। उन्होंने तलबा को हिदायत की कि वो पुरएतमाद रहें, बिला झिझक अपनी बात करें और किसी भी गैर महफूज सूरत हाल में फौरी तौर पर अपने वालिदैन और स्कूल इंतज़ामिया को आगाह करें।
उन्होंने यकीन दहानी कराई कि ट्रैफिक पुलिस हमारी बेटियों की हिफाजत के हवाले से इंतहाई संजीदा है और हर मुमकिन तामन के लिए हमेशा तैयार है। इस मौके पर उन्होंने दिलचस्पी रखने वाले तुलबा और उस्ताज़ा के लिए कैंप्स में ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर की पेशकश भी की। सेशन के इख्तिताम पर डायरेक्टर राना बाबर अली खान ने डीएसपी अब्दुल हमीद का कीमती वक्त देने और तलबा की हिफाजत के लिए इस मुयस्सर और काबिल कदर इक़दाम पर शुक्रिया अदा किया। कैमरा टीम के साथ मलिक मोहम्मद नवाज, NTN न्यूज़, जलालपुर पीरवाला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के अहकामात पर अमल करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर समंदरी कमर महमूद की ज़ेर निगरानी स्पेशल प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट चौधरी अबरार जट ने रेट लिस्ट आवेज़ा न करने पर और महंगे दामों अशिया खुर्दनोश की कीमतों फराहमी, नॉन टैक्स पेड सिगरेट की फ़रोख्त और तापतोल में कमी करने वाले दुकानदारों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए जफर चौक समेत मुख्तलिफ मकामात पर दुकानदारों को भारी जुर्माने आयद कर दिए हैं। इसी पर देखते हैं समंदरी से उस्मान कादरी की रिपोर्ट। समुंदरी के इलाका अड्डा जफर चौक में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के अहकामात पर अमल करवाने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर समुंदरी कमर महमूद मंच की ज़ेर निगरानी स्पेशल प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल चौधरी इब्रार जट ने दुकानदारों के खिलाफ क्रैकडाउन किया। नापतोल में कमी, टैक्स, नॉन टैक्स पेड सिगरेट की फ़रोख्त, नाकस अशिया और महंगे दामों अशिया खुरोनोश की फ़रोख्त, रेट लिस्ट आवेज़ा न करने वाले दुकानदारों को भारी जुर्माने आयद किए। इस मौके पर चौधरी इब्रार जाट ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि रेट लिस्ट से ज़ायद नरखों पर अशिया फ़रोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। खिलाफ वर्जी करने वालों दुकानदारों को भारी जुर्माने और मुकदमात का सामना करना पड़ेगा। उस्मान कादरी, NTN न्यूज़, समुंदरी। जलालपुर पीरवाला में 2025 में बदतरीन सैलाब आया था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने दौरे के दौरान सुपर बंद का वादा किया था, जो उन्होंने वफा कर दिखाया। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा NTN न्यूज़ मलिक मोहम्मद नवाज से, जो इस वक्त सीनियर कानूनदान नवाब इकबाल खान के साथ मौजूद हैं। जी मलिक नवाज, बताइएगा क्या कहना है उनका। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला में। 2025 के सैलाब के हवाले से अगर बात की जाए तो इंतहाई बदतरीन सैलाब था, जो कीमती जानें भी ज़ाया हुई थी उसमें और फसलात और मकान भी ज़ाया होते। उसी दौरान वज़ीर आला पंजाब ने यहाँ का विज़िट किया था। उस विज़िट के दौरान जलालपुर पीरवाला के शहरियों के लिए एक वादा किया था, जो वादा वफा कर दिया गया, जिसका सुपर बंद का काम आज तेज़ी से जारी। उन्होंने वादा किया था शहरियों के साथ। मेरे साथ सीनियर कानूनदान नवाब इकबाल साहब भी मौजूद हैं। मजीद हम इनसे जानते हैं इस हवाले से जो सुपर बंद बांधा जा रहा है वज़ीर आला पंजाब की तरफ से। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं इधर मौजूद हूँ अपना जलालपुर के मशरक़ी तरफ, जहाँ सुपर बंद बांधा जा रहा है। उस हवाले से मैं भी उसको देखने के लिए आया हूँ कि बहुत तारीफ़ हो रही थी कि बंद बहुत अच्छा और बुलंद और वाज़ेह बन रहा है, बड़ा चौड़ाई के साथ बन रहा है। तो मैं उस देखने के लिए आया हूँ। मैं शुक्रगुज़ार हूँ वज़ीर आला पंजाब का कि उन्होंने हमारे इलाके पर जनूबी पंजाब ख़ुसूसी तौर जलालपुर पीरवाला को, आवाम को, लोगों को, उनकी जायदादों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए उन्होंने इतना बड़ा फ़ंड रिलीज़ किया है। तो उन्होंने अपना 2025 के सैलाब के दौरान जो वादा किया है वो वादा इफ़ा किया है। तो मैं अपने बुकला बरादरी के तरफ से और शहर के मुअज़्ज़िज़ीन की तरफ से मैं शुक्रगुज़ार हूँ, मैं अपना वज़ीर आला पंजाब साहबा का और पूरी हुकूमत का। तो अल्लाह करेगा हमारे आइंदा भी इस तरह के जो मसाइल हैं वो हल करते रहेंगे। पहले हमारा ये नुकसान बहुत हो चुका है, बड़े नुकसानात से हम दो चार हुए। अल्लाह ताला की मेहरबानी है, अब ये बंद पर हम सब दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रगुज़ार हैं वज़ीर आला पंजाब साहब। जी आपने उनकी बात सुनी, उनका भी यही कहना है कि वज़ीर आला पंजाब ने जो हमें ये बंद का तोहफ़ा दिया है, हम इनके बेहद मशकूर हैं, जो पूरी कचहरी की तरफ से और जलालपुर पीरवाला के शहरियों ने भी इस बंद के लिए उनके इस इक़दाम को बहुत ही सराहा। जी वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर जुल्फ़िकार अली की हिदायत और प्रिंसिपल डॉक्टर ताहिर मुनीर भट्ट की ज़ेर निगरानी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सब कैंपस दीपालपुर रेनाला खुर्द में एक मालूमाती सेमिनार सर्विलेंस सेफ्टी रूल ऑफ ऑपरेशंस का इनेकाद किया गया, जिसमें ज़ैन असलम डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, सना रहमतुल्लाह पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं मुश्ताक अहमद भट्टी की इस रिपोर्ट में।
जी बिल्कुल, वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर जुल्फ़कार अली की खुसूसी हिदायत और प्रिंसिपल डॉक्टर तैन मुनीर भट्ट की ज़ेर निगरानी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सब कैंपस दीपालपुर रिनाला खुर्द में एक मालूमाती सेमिनार सर्विलेंस सेफ्टी का इनकाद किया गया। इस सेमिनार का मकसद तलबा में जदीद निगरानी के निज़ाम, अवामी तहफ़्फ़ुज़ के इक़दाम और अमन व अमान को बरकरार रखने में टेक्नोलॉजी के बढ़ते हुए किरदार के बारे में आगाही पैदा करना था। तकरीब में मेहमान खुसूसी ज़ैन असलम डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, जबकि मेहमानान ग्रामी में अदील अकरम असिस्टेंट मैनेजर, फ़ाहद हमीद इंचार्ज 15 और सना रहमतुल्लाह पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर शामिल थे, जिन्होंने एमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम, डिजिटल मॉनिटरिंग, ट्रैफिक मैनेजमेंट और सेफ सिटी ऑपरेशंस के बारे में अपने कीमती ख्यालात का इजहार किया। सेशन में तलबा व तालिबात और फैकल्टी मेंबरान की बड़ी तादाद ने शिरकत की और आगाही पर मबनी गुफ्तगू को सराहा। इस मौके पर समाजी शख्सियत सैयद नदीम जाफरी ने तलबा व तालिबात, असातिज़ा, सिविल सोसाइटी की जानिब से शुरा से खिताब करते हुए सेफ सिटी प्रोजेक्ट जिला उकाड़ा के साथ मिलकर शऊर बेदारी मुहिम को स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों के अलावा सिविल सोसाइटी से भी राब्ता किया जाए। जी, और अब आपको बताएंगे डीपीओ लोधरा की हिदायत पर डीटीओ मोहम्मद आमिर जमील शाह के सर्कल दुनियापुर का विजिट ट्रैफिक एहलकारों में हिफाजती सामान तकसीम किया गया। तफसीलात देखिए अली रजा की इस रिपोर्ट में। डीपीओ लोधरा की हदायत पर डीटीओ मोहम्मद आमिर जमील शाह का सर्कल दुनियापुर का विजिट ट्रैफिक एहलकारों में हिफाजती सामान तकसीम किया। शदीद गर्मी में ड्यूटी देने वाले नौजवान हमारा एहसास हैं, सेहत व हिफाजत पर कोई समझौता नहीं होगा। डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर ट्रैफिक एजुकेशन यूनिट के हमरा नौजवान में हेलमेट, साइड शीशे और ठंडे पानी की बोतलें तकसीम की गई। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर लोधरा कैप्टन रिटायर अली बिन तारिक की खुसूसी हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर लोधरा मोहम्मद आमिर जमील ने ट्रैफिक एजुकेशन यूनिट के हमरा सर्कल दुनियापुर का विजिट किया। कैमरामैन टीम के साथ अली रजा, NTN न्यूज़, दुनियापुर। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही।